या आई वॉज इन दी ड्रॉपिंग डाउन थियरी. ड्रॉपिंग डाउन थियरी में क्या होता है, सी इन दिस ड्रॉपिंग डाउन थियरी दिस इज योर यूट्रस एंड दिस इज द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज ओवम विल ड्रॉप डाउन. ऐसा वो कहीं फिक्स जाके इम्प्लांट नहीं होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस में. इन दिस थियरी, ओके, आई एम टेलिंग अबाउट दिस थियरी. इस थियरी में ड्रॉपिंग डाउन हो का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो सीधा ड्रॉप डाउन हो जाता है नीचे नीचे वाले एरिया में. एंड इसका भी रीज़न है बिकॉज इन द अपर सेगमेंट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस देर इज अ नो कोरियनिक रिएक्शन, नो पॉजिटिव कोरियनिक रिएक्शन, नो फेवरेबल एनवायरमेंट इज देयर. इसलिए दिस फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन इन द लोअर पोर्शन. अब जब लोअर पोर्शन में फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन हो गया है तो उसी पोर्शन में ही प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट होता है. जहाँ पर बेबी और प्लेसेंटा जहाँ पर फीटस या ओवम इम्प्लांट होता है उसी एरिया में प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट होता है. अब अगर this fertilized ovum drop down in the lower portion, so definitely this placenta will grown up in the lower portion only. Okay, this would be the causes to have the placenta previa. Persistence of chorionic activity. क्या होता है in some places the chorionic activities play very important role. Chorionic activity means there is a chorionic frondosome is there inside the uterus which play very important role in this implantation and entire the pregnancy period. So when the chorionic activity is not persistent, not if there is any abnormalities or any deviation in this activity, so it can't able to give the favorable environment to the placenta or to the fetus. Even in this condition there is a having chance to get the जहाँ पे fetus को safest लगेगा, favorable लगेगा, they will be situated there only. So if the chorionic activity is persistent in the upper segment, then baby will come down in the lower segment or whatever, or in the side segment, जैसा भी conditions हो. ठीक है. Defective decidua. If mother's portion decidua is internal layer, okay, in during the pregnancy we call that decidua. Okay, in the decidua cases if there is a defective decidua, then definitely baby will not able to cooperate, baby will not able to, because decidua only play, यहाँ पर वो भी नहीं है space. Decidua is see this is the inner layer or decidua. This play very important role in the implantation. अब जब favorable environment ये decidua देगा तभी तो baby proper grow और proper रह पाएगा. जैसे आपका जो epidermis, योर एपिडर्मिस कितना काम करता है, योर एपिडर्मिस, सो बेबी के लिए डेसिडुआ इज लाइक आउटर लेयर. ओके, तो डेसिडुआ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फीटस. उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको जग मतलब इट इज़ ए वेरी हेल्पफुल, इट्स गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑल्सो टू development of this fetus. Okay, so if that decidua will be defective, then there is a very problematic situation to have the placenta previa. Next is high risk cases or high risk factors. क्या क्या high risk factors हो सकते हैं which can cause the placenta previa. Okay, first is multiparity. मैंने हमेशा से बोला, if there is a mother with having a multiple baby can have the chance to get the placenta previa. Increase maternal age. After 35 years of age there is a chance to having every type of disease. This is a high risk condition in every diseases or every high risk. प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, इफ वुमेन इज हैविंग, पहले से ही अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ तो शी इज हैविंग द चांस टू, आई एम नॉट टेलिंग द etiology, ओनली दिस इज द हाई रिस्क फैक्टर. प्लेसेंटल साइज एंड एबनॉर्मलिटी. इफ द प्लेसेंटा इज साइज इज बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली टू नॉर्मल, और या तो प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो जितने वेंस आर्टरीज होने चाहिए वो नहीं है, या फिर कुछ लोब्स मिस हैं, या फिर immature placenta है, तो there can be if any type of abnormalities in the placenta, we'll see in one unit कि placental abnormalities, cord abnormalities क्या क्या होता है. उस टाइम पे you will be clear with the placental abnormality.
स्कैरिंग ऑफ द यूट्रस, इफ़ देयर इज़ एनी स्कैर और एनी टाइप ऑफ, अगर यूट्रस में ही हमारी कहीं पे खराबी हो रही है तो ऑब्वियसली फीटस नीचे आके अपने सेफेस्ट जगह में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। स्मोकिंग, इफ़ मदर इज़ हैविंग अल्कोहल स्मोकिंग, तो in this situation some hormones which is responsible for the this implantation and for this pregnancy can cease out, मतलब बंद हो जाता है, सीदेशंस हो जाते हैं और नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन दिस सिचुएशन मदर के नॉट कैरी द बेबी इन विद द नॉर्मल कंडीशन, ओके। प्रायर क्यूरेटेज, इफ मदर इज हैविंग प्रीवियसली एनी क्यूरेटेज like surgery, so there is a chance to have a high risk factor. Now we'll see the types and degree. See the images. First of all, just see the images and then I'll teach you what is the meaning of everything. See, first this is complete, and let me teach you, this is placenta. Shall we use very bright color? This is placenta, okay, and this is cord, okay, and plus fetus is up inside, growing upper side, upper segments, and this is here, this is placenta, or you are able to see this is the internal os, or see this is internal os, here you are able to see प्लेसेंटा केवल यहाँ तक है, और इसमें आप लोग अब थोड़ा सा वो कौन सा गेम खेलते हैं यार हम लोग, मैच द फॉलोइंग, नहीं कौन सा गेम है, डिफ्रेंशिएट विथ ईच अदर, ठीक है। अब आपस में अंतर ढूंढो, क्या क्या अंतर आप लोग को दिख रहा है। सी, इन दिस कंडीशन प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली कवर्ड दी इंटरनल ऑस, इन दिस कंडीशन स्लाइटली कवर किया हुआ है, यू आर एबल टू सी, एंड दिस कंडीशन इस जो ऑस है उसको टच बस किया है, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल टच नहीं किया है इंटरनल ऑस को और सीधा ऊपर गया है, ठीक है। तो अब इतना ही हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब नाउ सी द कंप्लीट, जिसने पूरा कंप्लीट कवर किया है दैट वी कॉल द कंप्लीट। पार्शियल मीन्स जिसने हल्का सा कवर किया, सी द प्लेसेंटास कंडीशन, तो इसने थोड़ा सा बस कवर किया है, और मार्जिनल में यू आर एबल टू सी जस्ट टच द मार्जिन में जस्ट टच किया है इंटरनल ऑस को, एंड हियर दिस इज इंटरनल ऑस एंड दिस इज द प्लेसेंटा, यहाँ ऊपर की तरफ चला गया है, तो दिस इज कॉल्ड द लो लाइंग, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स, विल सी द टाइप्स वन बाई वन। सी टाइप वन इज लो लाइंग, जैसे मैंने बताया था ना, लो लाइंग प्लेसेंटा में द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट एंड द ओनली लोअर मार्जिन एंड reaches onto the लोअर सेगमेंट बट नॉट अप द, सी मैंने आपको दिखाया था, से इन दिस कंडीशन। अब आप लोग को ये वाला इमेज आप याद करो, इस वाले इमेज में दिस इज टाइप 1, this is type 2, let me use another pencil, this is type 1, this is type 2, this is type 3 and this is type 4, ओके। अब ये उल्टा चलेगा, आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे मैंने लो लाइंग बोला है ना, तो लो लाइंग विल बी हियर फर्स्ट, ओके। सी दिस इज फर्स्ट मीन्स लो लाइंग, दिस इज कॉल्ड दी लो लाइंग, जिसमें क्या होता है मैंने बताया था कि इसमें प्लेसेंटा ऊपर की तरफ थोड़ा सा सिचुएटेड है, मतलब लो लाइंग में सिचुएटेड नहीं है, मतलब एकदम नीचे नहीं, इंटरनल ऑस के नीचे सिचुएटेड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर सिचुएटेड है, ओके। दिस इज कॉल्ड दी टाइप 1 और लो लाइंग। और नाउ टाइप 2, सी मैंने एक और बताया था आप लोगों को, जिसमें प्लेसेंटा केवल मार्जिन को टच करता है। सी कहाँ के हाँ, सी इन दिस इमेज केवल मार्जिन को टच किया है, बट इंटरनल ऑस को टच नहीं किया है, ओनली द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस, ठीक है। तो this is called the marginal, or you can say the type 2. The placenta reaches the placenta reaches the, what is this, कहाँ गया, okay, anyway, the placenta reaches the marginal section or the just margin of the internal os, आप ये लिख लेना इसमें टाइप 2 में, the placenta reaches the marginal side or marginal portion of the internal os, okay. Next is type 3. In this type 3, incomplete और partial central। अब इसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑस को केवल टच किया है,
ठीक है, पूरा कवर नहीं किया है, इंटरनल ऑस को जस्ट टच किया है। आई शो यू द इमेज, सी दिस इज टाइप 3। इन दिस यू आर एबल टू सी जस्ट टच द इंटरनल ऑस, मतलब दिस इज completely covered the internal os, and here you are able to see just touch the margin, and here just close the internal os, मतलब entire close नहीं किया है, केवल वहाँ तक पहुँचा है। ओके, सी the placenta covers the internal os, only just cover the internal os when the os is open, जैसे ही os open होता है तो just os को cover किया है, ठीक है। and in the type 4 central or total, you will say this total, the placenta completely cover the internal os, okay, see completely cover the internal os इवन आफ्टर इट इज़ फुली डायलेटेड, जब फुल डायलेटेशन होता है सर्विक्स का, इंटरनल ऑस का, तब भी प्लेसेंटा ऐसे सिचुएटेड है कि चाहे कितना भी डायलेट हो जाए सर्विक्स, प्लेसेंटा ही पहले आएगा। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो तो मैं आप लोग को कॉलेज में एक बार और इसको क्लियर कर दूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट विल सी द क्लिनिकल फीचर्स। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। अभी टाइम है 8:41। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, पेनलेस एंड या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हमारे टीचर ने भी, देयर वर वन सर जिसने हमें ये पढ़ाया था, वन डॉक्टर वॉज देयर, उनने हमें पढ़ाया था प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया हमको उनने ऐसा समझाया था कि प्लेसेंटा एंड प्रीविया, जस्ट अंडरस्टैंड, प्रीविया मीन्स पहले एंड प्लेसेंटा प्रीविया मतलब पहले, मतलब प्लेसेंटा विल कम फर्स्ट, ओके, एंड पेनलेस, याद रखना PPP, प्लेसेंटा प्रीविया एंड पेनलेस। पेनलेस इज द सिम्टम ऑफ दिस प्लेसेंटा प्रीविया। हमेशा अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें हमें हर टाइप के एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट हमने हमेशा पढ़ा है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक सिम्टम्स दैट इट इज़ वेरी पेनलेस, मतलब वुमेन को पता ही नहीं चलेगा कि शी इज़ हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और कॉजेस ऑफ वेजाना ब्लीडिंग तो उसको होगा, बट उसको समझ में नहीं आएगा कि यार मुझे बिना पेन के, बिना दर्द के व्हाई इट इज़ हैपनिंग, उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट वुड बी द पेनलेस, ओके। तो पेनलेस ब्लीडिंग होता है वुमेन को। which one see what happen, yeah, painless। next is the blood is usually bright red in color। अब bright red color क्यों दिखेगा? because placenta is growing placenta and it is having a fresh blood। इसी फ्रेश ब्लड से तो बेबी को न्यूट्रिशंस जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज हैविंग द ब्राइट रेड कलर, फ्रेश ब्लड वैजाइनल ब्लीडिंग में दिखेगा। सबसिक्वेंट बाउट्स ऑफ ब्लीडिंग में बी अलार्मिंग। कई बार क्या होता है, बाउट्स ऑफ ब्लीडिंग दिखता है, मतलब बहुत अमाउंट में कभी कभार वुमेन को दिखता है, जो एक अलार्मिंग साइन होती है। अर्लियर ब्लीडिंग इज मोर लाइकली टू अकर इन द मेजर डिग्री। अर्लियर ब्लीडिंग में इज मोर लाइकली टू अकर इन मेजर इफ देयर इज हैविंग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अगर 4th डिग्री का प्लेसेंटा प्रीविया है तो मदर विल हैव द मोर ब्लीडिंग इन द अर्ली प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 28 वीक्स या उससे पहले होगा तो ब्लीडिंग जल्दी से दिखने लगेगा। और अगर पार्शियल होता है या फिर टाइप 1 डिग्री है, टाइप 2 डिग्री है, जिसमें मार्जिन तक सिचुएटेड है, ऐसे सिचुएशन में ब्लीडिंग बहुत लेट आता है। और अगर कंप्लीटली सिचुएटेड है इन द लोअर पोर्शन तो ब्लीडिंग अर्लियर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सी द साइंस। For general condition and anemia are proposed. Obviously, if there is a bleeding, there is having the anemia. There is chance to have the anemia. Okay. General condition and anemia are proportionate to the visible blood loss. If there is having blood loss, you are just imagine क्या होता है ना, जब बेबी डिलीवर्ड होता है ना तो उस टाइम पे उतना ब्लड लॉस हाँ होता है, 250 ml अराउंड ब्लड लॉस होता है। बट when the placenta get out, placenta is the only formation of blood,
मतलब completely blood is having in the placenta only. जब placenta separate होता है या फिर placenta out होता है, after separation placenta out होता है, तो there is a huge amount of blood get out. Okay, तो ये देखो, this is the condition. ये इस इमेज में सेपरेशंस दिखा रहा है, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो कितना ब्लड आउट होता है, ठीक है। तो दिस ब्लड, जितने भी दिस ब्लड इज गेटिंग रिमूविंग फ्रॉम द यूट्रस, इट कैन कॉज द एनीमिया इन द वुमेन। बहुत सारा ब्लड लॉस होने के कारण मदर कैन हैव द एनीमिया। नाउ द जनरल एग्जामिनेशन प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ शॉक। अब आप एग्जामिनेशन करोगे तो यू विल बी सी कि फीचर्स ऑफ शॉक्स दिखेंगे आपको, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। जितने ब्लड लॉस हुए हैं उतना यू विल बी एबल टू सी दी फीचर्स ऑफ शॉक्स, ठीक है। डिग्री ऑफ एनीमिया इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। एनीमिया दिखेगा, शॉक दिखेगा बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, बिकॉज ऑफ हियर ऑल्सो ब्लड लॉस, और पल्स ब्लड प्रेशर आर रिकॉर्डेड, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया आर प्रेजेंट। pulse, blood pressure and tachycardia, these are very, and hypotension, obviously tachycardia, क्योंकि मदर किस कंडीशन में, यू जस्ट इमेजिन मदर इज इन दी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। सोचो उनको इतना ब्लड लॉस हो रहा है, इतना घबराहट हो रही है, इतना ब्लड, तुम्हारा कभी इतना ब्लड लॉस होता है तो क्या कंडीशन होती है, वही समझ लो आप। हाइट ऑफ द फंडस यूजुअली करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ऑब्वियसली हाइट ऑफ द फंडस थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, जो दिखना चाहिए उसमें थोड़ा सा वेरिएट रहेगा। यूट्रस फील रिलैक्स्ड, सॉफ्ट एंड इलास्टिक विदाउट एनी लोकलाइज एरिया ऑफ टेंडरनेस, कहीं पे भी टेंडरनेस फील नहीं होगा, रिलैक्स रहेगा। परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रिच और ट्रांसफर्स, देयर इज हैविंग चांस टू गेट द माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रिच होने के चांसेस होते हैं, ट्रांसफर्स लाई होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। So after the examination you will be get this type of changes. Abdominal examination आप करेंगे, the presenting part is high up. क्यों हाई अप होगा, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट ऑब्वियसली ऊपर होगा, क्योंकि प्लेसेंटा पहले है, ओके। प्लेसेंटा सबसे पहले दिख रहा है तो प्रेजेंटिंग पार्ट ऊपर होगा, ओके। द फीटल हार्ट साउंड इज यूजुअली प्रेजेंट अनलेस देयर इज दिस इज वन कंडीशन, लेट मी टेल यू, इसमें फीटल इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ओके। एबनॉर्मल कंडीशन इन दिस एंटीपार्टम हेमरेज और प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये मत सोचो कि इसमें अभी तक हम ये पढ़ते आए ना कि बेबी डेवलप नहीं हो पाया, ये वो कंडीशन नहीं है। एंटीपार्टम हेमरेज में बेबी भी कम्प्लीटली डेवलप है, प्लेसेंटा भी डेवलप्ड है, बस द प्रॉब्लम क्या है कि प्लेसेंटा नीचे सिचुएटेड हो गया है, ओके। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। मतलब अगर प्लेसेंटा नॉर्मल पोजिशन पे नहीं है तो, और प्लेसेंटा पहले आ जा, अच्छा एक मैं और चीज़ बता दूँ, कई लोग के बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा तो क्या प्रॉब्लम है मैम, प्लेसेंटा पहले आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा पहले निकाल लो। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मेरे दिमाग में भी ये आया था। अब आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर प्लेसेंटा आप पहले आउट कर दोगे तो प्लेसेंटा के आउट होते से ही देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड कैन लॉस, बहुत ब्लड लॉस होता है, और फिर उसके बाद वुमेन में इतनी एनर्जी और इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो टॉलरेबल हो, ओके। और सी अगर आप बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर ऑल द प्लेसेंटा एंड द फीटस इज देयर, इफ द बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होगा कि नहीं होगा, देयर इज़ ऑल्सो क्वेरीज। मतलब हर चीज़ जो नॉर्मल होता है डिलीवरी में वो नहीं होगा, कभी भी एबनॉर्मल, कभी भी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लेसेंटा मान लो हम पहले आउट कर देते तो सबसे मेन कारण ये होगा कि ब्लड लॉस होगा और बेबी को हम उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा इनसाइड द यूट्रस। 1 घंटे 2 घंटे की डिलीवरी पीरियड होगी तो देयर इज़ हैविंग चांस टू गेट दी cessation of oxygen, cessation of breathing difficulties can happen with the baby, okay। तो there is a chance to have the hypoxia, okay। तो ये सब conditions दिखते हैं, तो हम देखेंगे शायद इसके कॉम्प्लिकेशंस पे दिया होगा और डिटेल्स में, ठीक है। वेयर वी वर प्लेसेंटा विद द फीटल हार्ट साउंड इज यूजुअली प्रेजेंट। ऑब्वियसली मैंने यही बता रही थी आप लोग को, फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट रहता है, सब चीज़ नॉर्मल रहता है, बट सिचुएशन इज ओनली दी प्लेसेंटल सिचुएशंस केवल चेंज होता है। वल्वल इन्फेक्शंस इंस्पेक्शंस जब आप करेंगे तो व्हाट यू विल सी, ओनली इंस्पेक्शन इज डन टू नोट दी वेदर ब्लीडिंग इज स्टिल ऑकरिंग और हैज सीजेस्ट। Character of the blood, you will see the character of the blood.
आप जब वजाइनल इंस्पेक्शंस करेंगे तो यू विल सी कि ब्लीडिंग सीज्ड आउट हो चुका है या फिर अभी भी कंटिन्यू है। ओके, तो ये सबका एग्जामिनेशन आप वल्व इंस्पेक्शन करके कर सकते हैं। नाउ कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, हाउ यू विल कंफर्म दैट दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ सी फर्स्ट लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा, हम जब सोनोग्राफी करेंगे तो विल हैव द सिचुएशन ऑफ द प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा कहाँ पर सिचुएटेड है, कैसा सिचुएटेड है, तो विल सी द रिजल्ट ऑफ सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जब आप करेंगे उसमें भी आपको बहुत ही जूम, बहुत ही डॉपलर सोनोग्राफी करेंगे, आपको पूरे कंडीशंस में आज ये जितने भी रिजल्ट्स में आपको इजीली दिख जाएगा कि प्लेसेंटा इज सिचुएटेड इन दी लोअर पोल। ओके, नाउ क्लिनिकली बाय इंटरनल एग्जामिनेशन और डबल सेट वेजाइनल एग्जामिनेशन जब आप पीवी करेंगे तो यू विल फील दैट प्लेसेंटा इज सिचुएटेड इन द लोअर पोर्शन। आपको बहुत लोब्स, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग आएगी। मैंने आपको एंटीनेटल केयर एग्जामिनेशंस बताए हैं ना, उसमें भी यू विल बी इजी टू गेट दी, जब आप लोअर पोर्शन, जब अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर आप जब सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले एरिया में रखते हैं और आप जब चेक करते हैं बैलोटमेंट ऑफ द फीटल हेड, उस समय भी आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि वहाँ पर प्लेसेंटा आपको फील होगा। ओके, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि प्लेसेंटा लोअर पोर्शन में। एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, जब आप वेजाइनल डिलीवरी करने जाओगे तो जब आप एग्जामिनेशन करोगे प्लेसेंटा ही आपको सबसे पहला दिखेगा। तो क्लिनिकली आप ये कंडीशंस करके देख सकते हो और सोनोग्राफी से आप ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन से आप ये ऐसे ही कंफर्म कर सकते हो कि मदर इज़ हैविंग दी प्लेसेंटा प्रीविया। Next is maternal complication. I'll teach you this complications in the next slide. In the, complications and the management, I think. Yeah, I'll teach you in the next class. Thank you so much.